Assalamualaikum and a very good afternoon to all our viewers. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our coverage of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. We're bringing you live games, but we're also bringing you exclusive analysis from four of Pakistan's very best cricketing minds. मेरे साथ मौजूद स्टूडियोज में आज पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और ऑलराउंडर शुएब मलिक. शुएब, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. कैसा फील कर रहे हैं आप आज? फ्रेश. कल बहुत लेट फ्री हुए यहाँ से, तो ज़्यादा थक तो नहीं गया? नहीं, हम कौन सा भाग के बोल रहे थे. And we have with us another former captain of Pakistan, Misbah-ul Haq. Misbah, good afternoon. How are you? Good afternoon. अस्सलाम वालेकुम. लेट का क्या मतलब है? ज़्यादा लंबी बारी ले ली थी श्रीलंका. बहुत ज़्यादा मैच फंस गया था आपके मुताबिक. And another former captain of Pakistan, former wicket keeper, Janab Moin Khan. Assalamu alaikum. How are you? Very good. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. Former Pakistan captain, Sultan of Swing, Wasim Akram joins us. Good afternoon. Good afternoon. Assalamu alaikum everyone. क्या हाल है सबका? I hope सब ठीक ठाक हों. सब बिल्कुल ज़बरदस्त हैं. We're bracing for match number 34 of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. लेकिन उससे पहले कल की मैच समरी पे नज़र दौड़ाते हैं, जहां इंडिया just stormed past श्रीलंका. बैटिंग फर्स्ट इंडिया 357 फॉर 8. शुभमन गिल ने 92 रन्स किए, विराट कोहली ने 88 रन्स किए, श्रेयस अय्यर कमिंग बैक इनटू फॉर्म, उन्होंने 82 रन्स किए 56 गेंदों पर. नथिंग टू राइट होम अबाउट फॉर श्रीलंका's bowling and fielding except for that fifer for Madhushanka, but that also came at an economy rate of 8 runs per over. जवाब में श्रीलंका coming on the back of 50 all out in the Asia Cup final, यहाँ पे सिर्फ 55 रन्स कर सके 19.4 ओवर्स में. शामी के लिए 5 विकेट्स, सिराज के लिए 3 विकेट्स एंड जडेजा चिपिंग इन विद 1 विकेट. इन द एंड इंडिया विनिंग बाय 302 रन्स. बहुत ही वन साइडेड मैच हुआ and India has sailed through now to the semi-finals of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. But the tournament, as it seems, is opening up. उसके लिए हम नज़र दौड़ाते हैं points table पर. After this match, the points table now stacks up with India at the very top, having qualified 7 wins in 7 matches. South Africa inching very close, 6 wins in 7 matches, 12 points के साथ 2.29 का net run rate. Australia तीसरे नंबर पर 6 मैचेस में से 4 जीते 2 हारे 8 पॉइंट्स, और न्यूजीलैंड 7 में से 4 जीते 3 हारे 8 पॉइंट्स. लेकिन जो 3 मैचेस न्यूजीलैंड हारे हैं वो लगातार पिछले 3 मैचेस हारे हैं, तो इट सीम्स लाइक देयर टीम इज finding it difficult. Pakistan on the upswing now, 7 matches, 3 wins, 4 losses with 6 points. Afghanistan, उनका भी वर्ल्ड कप ओपन है, 6 मैचेस में 3 विक्ट्रीज 3 हार और 6 पॉइंट्स उनके पास हैं. श्रीलंका 7 मैचेस, 2 wins, 5 losses and 4 points. Netherlands of course playing against Afghanistan today, 6 मैचेस में 2 मैचेस जीते हैं. याद रखिएगा कि the top 8 rankings are very important with an eye on the 2025 Champions Trophy. So it's not all lost for all the playing teams in this World Cup. Right then, that's the points table. कल रात पे बात करना चाहूँगा वसीम भाई. इंडिया ने तो completely blow away कर दिया श्रीलंका को. Yes, we discussed it in detail last night about India's performance, their total command on the game, all the 3 aspects of the game itself, batting, bowling and fielding. So yeah, Sri Lanka had no answer, 55 all out again in a matter of month. So for Sri Lankan, I suppose they have to go back, sit on a drawing board and get the right players for the right job. जैसे एंजेलो मैथ्यू था, वो एक्सपीरियंस तरीन है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रही है, उसको स्क्वाड में रखो, उसको एंड में लेके आए हैं, वाज टू लेट फॉर देम. सो या, वेल डन इंडिया. मिसबा, ऐसे मौक़ों पर वॉइसेस लाइक महिला जयवर्धने जो कंसल्टेंट हैं श्रीलंका क्रिकेट के, हाउ इम्पोर्टेंट आर दे? क्योंकि इट्स नॉट ऑल लॉस्ट इवन इफ़ यू डोंट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स. आप चाहेंगे कि टॉप 8 में एटलीस्ट फिनिश करें विद एन आई ऑन द 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी. बिल्कुल, आपने हर मैच, अब जाहिर है उनके लिए हर मैच इम्पोर्टेंट है, कहीं कुछ ना कुछ आपका स्टेक पे लगा हुआ. ये नहीं कि आप वर्ल्ड कप के अगर सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकते तो दैट्स द एंड. आपने चैम्पियंस ट्रॉफी को भी जेन में रखना है, रैंकिंग्स को भी जेन में रखना है, और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मॉरली यू वांट टू विन सम गेम्स बिफोर गोइंग बैक. वो कॉन्फिडेंस आपका एज ए टीम वापस आए. बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन है, डीमोरलाइजिंग है उनकी पूरी नेशन के लिए भी, महिला के लिए भी, कि वो टीम के साथ है और टीम की इस किस्म की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं.
एक बॉलिंग की तरफ जाते हैं तो बॉलिंग उनको डिसअपॉइंट कर देती है, बैटिंग पे थोड़ा सा जिम्मेदारी डालते हैं तो बैटिंग उनकी कोलैप्स कर देती है, फील्डिंग जो कि श्रीलंका का हमेशा एक स्ट्रेंथ रही है, और स्पिन बॉलिंग वो बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, कुछ भी रिस्पॉन्स कोई है ही नहीं उनका। तो इस टाइम दे आर इन जिसको कहते हैं ना कि डीप ट्रबल। अब कुछ ना कुछ करना है, उठाना है उनको, किस तरीके से चलें जो भी मैच बचे हैं, ताकि एटलीस्ट दे विल जस्ट गो बैक विद सम कॉन्फिडेंस। मोइन भाई, फील्डिंग का जिक्र मिसबा ने किया, कल आप भी कह रहे थे कि श्रीलंका की फील्डिंग हैज़ नॉट बीन देयर वेयर इट नीड्स टू बी, पर क्या ये बिग स्टेज नर्व्स हैं जिसकी वजह से एकदम लड़खड़ा रही है उनकी टीम? बिल्कुल होता है, ये भी वन ऑफ द फैक्टर के बड़े मैचेस के अंदर या बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं या प्रेशर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। आई थिंक जो मेन रीजनिंग है इसकी वो यही लगता है कि जिस तरह बैटिंग में हमने देखा कोई एज सच बहुत बड़े बड़े स्कोर्स नहीं हुए, यू नो, उससे भी फ़र्क पड़ता है आपकी, जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही देन यू गेट स्टक, कि आपकी सोच लाइक टूवर्ड्स द टीम नहीं होती, वो अपने आप में ही इंसान गुम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह बॉलर्स ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पूरी टीम की जो इनकी कॉम्पोजिशन सेट ही नहीं हो सकी इस पूरे टूर्नामेंट में। तकरीबन 18 प्लेयर्स अभी तक खिला चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। एक वाहिद मैच मुझे ऐसा लगा था कि श्रीलंका अच्छा खेलेगी जब पहला मैच हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा था, व्हेन दे स्कोर्ड 428, इन्होंने आगे से ट्राई की, 300 से ऊपर रन्स किए थे। वहाँ नज़र आ रहा था कि एक एफर्ट किए, यू नो, हम बोल रहे थे कि ये टीम आएगी। लेकिन आई थिंक जिस तरह ये सारे ही फॉर्म एकदम चली गई, कप्तान चेंज हुआ, कप्तान मेंडिस जब बने उनकी फॉर्म बहुत अच्छी थी, उसके बाद उनसे स्कोर नहीं हुआ, एंड देन अगेन तो वो एक बॉडी लैंग्वेज जो कप्तान की होती है ना, वो फिर रिफ्लेक्ट करने लगती है टीम में। इसी वजह से मुझे लगता है उसका आफ्टर इफेक्ट जो है ना वो सारे फील्डिंग के ऊपर आ रहे हैं, बट दे नॉट रेडी टू आई मीन मेक एनीथिंग, कोई ऐसी हम चीज़ करें जिससे वापस कम बैक कर सकें इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो टोटली शैटर्ड नज़र आया मुझे बिल्कुल। शुएब, ऐसे मौके पर लॉन्ग मीटिंग्स एंड डिस्कशंस या जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट? आई थिंक जो जिनमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, मिसबा भाई ने मेंशन किया, वसीम भाई ने, मोइन भाई ने, कि इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स, तो उसमें सिंपल ये होता है कि रेक्टिफाई करें और उस टाइम के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। और आई गेस मीटिंग्स ज़रूर होनी चाहिए बट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर ऑलरेडी डाउन तो ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए और फिर एक ही चीज़ पे जो है डिस्कस करना चाहिए। एक आधे दिन के लिए ऑफ हो जाना चाहिए अपने प्रोफेशन से, आप फ्रेश माइंड के साथ वापस आते हैं। और ये एग्जांपल जो है फ़खर ज़मान की भी है, जब उनको थोड़े से मैचेस उन्होंने गैप दिया, ही केम बैक, और हम लोगों ने ओल्ड वाले फ़खर ज़मान देखे। एक चीज़ मैं ये यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका टीम का परफॉर्मर हो उसी को कैप्टन बनना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये 2 डिफरेंट स्किल्स यूर आस्किंग फ्रॉम 1 पर्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुशाल मेंडिस अगर अच्छी फॉर्म में थे तो ज़रूरी नहीं है कि कैप्टनसी भी उनको दे दी जाए, क्योंकि आपने बेस्ट लेना है। तो एज अ थिंक पहले से होते हैं, राइट, बिफोर द टूर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, ये कप्तान है, ये वाइस कप्तान है, या कप्तान इंजर होता है तो दिस एक गाय ए और गाय बी विल बिकम द कैप्टन। एब्सोल्युटली। लेकिन वसीम भाई, ये ज़रूर थिंक टैंक को सोचना चाहिए, जो भी डिसीजन मेकर हैं, कि वो नहीं करना चाहिए कि आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे पे डाल रहे हैं। एक विकेट कीपिंग भी करता है, इन फॉर्म भी है, आप उसको कैप्टन भी बना रहे हो, तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। बेशक आपने टूर से पहले यू हैव डिसाइडेड कि अगर कैप्टन को कुछ हुआ तो ये कैप्टनसी करेंगे, बट नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर अच्छा परफॉर्मर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है उसी को आप कैप्टनसी दो। कैप्टनसी इज़ अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। मलिक की बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये हमारे यहाँ पे ही ऐसे होता है कि हमें वर्ल्ड कप में आके तजर्बा करना होता है कोई, क्योंकि दुनिया में जहाँ पे भी होता है आपको 2-3 साल पहले देखते हैं कि दूसरी चॉइस कौन सी है, कौन प्रेशर को हैंडल कर सकता है, और आप उसको तैयार करते हैं एकदम। अब पता चला कि वो टेम्परामेंट वाइज वो जो है बेचारा प्रेशर में आके अपनी परफॉर्मेंस भी उसकी ख़राब होगी। Right then, that was the summary of India v Sri Lanka. आज का मैच नंबर 34 of the ICC Men's Cricket World Cup 2023 हम आइडेंट आपको दिखाते हैं। It is Afghanistan taking on the Netherlands. Hashmatullah Shahidi's men against Scott Edwards and his team from the Netherlands. लखनऊ में ये मैच आज 1:30 बजे शुरू होगा और हम आपकी खिदमत में ये मैच लाइव लेकर आएंगे from लखनऊ. We'll take a very short break here. On the other side, we'll build up to the Netherlands v Afghanistan. Keep watching.
वेलकम बैक टू द पवेलियन। आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap app. We're building to match number 34 of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. It is Netherlands taking on Afghanistan. It's a match that has high stakes for both these teams. हम देखते हैं अब match preview from Lucknow. Business end of the tournament all to play for both Afghanistan and the Netherlands. मिसबा आपके पास आना चाहूँगा। लखनऊ जनरली लो स्कोरिंग वेन्यू है, किस टीम को ज़्यादा फैंसी करेंगे आज आप? देखिए, अगर अभी जो क्रिकेट खेल रहे हैं उस और रिसोर्सेज को देखें तो अफ़गानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, उनको एडवांटेज है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर वेन्यू पे हम आते हैं तो मुझे लगता है जो उनको अच्छी बॉलिंग का एडवांटेज है, दे डोंट नीड पिच के जहाँ कोई हेल्प मिल रही है। वो नॉर्मल पिच पे भी दूसरी टीमों से उनकी बॉलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो स्पिन बॉलिंग है, आप देखें तीनों मैच वो जीते हैं। दिल्ली में इतना ज़बरदस्त पिच था, इंग्लैंड को फंसा लिया उन्होंने रन्स करके, क्योंकि उनकी बैटिंग को अच्छी पिच मिलती है तो वो रन्स करते हैं। मुश्किल पिच पे उनकी बैटिंग भी फंसती है। ये मुझे लगता है इस वेन्यू पे थोड़ा सा अफ़गानिस्तान को इस बात का डिसएडवांटेज होगा। अच्छी पिच होती तो अफ़गानिस्तान इस टाइम जिस फॉर्म में खेल रही है, उनके बैट्समैन स्ट्रोक मेकर हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं और वो रन्स भी करते हो, फिर उनकी बॉलिंग किसी भी पिच पे दूसरी टीम को फंसा सकती है। लेकिन जब ऐसी पिच हो, ट्रिकी थोड़ी सी पिच हो, फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है, कन्वेंशनल जो स्पिनर्स हैं उनको भी हेल्प मिल रही है, तो वो मुझे लगता है समहाउ वो न्यूट्रलाइज कर देती है उस एडवांटेज को अच्छी बॉलिंग का जो अफगानिस्तान के पास है। एक चीज़ ज़रूर है, जहाँ पे डिसएडवांटेज है जैसे आपने एक्सप्लेन किया, वहाँ पे एडवांटेज भी है। लखनऊ जो है वो अफगानिस्तान का यूज्ड टू बी होम ग्राउंड, तो एडवांटेज भी है उनको एट द सेम टाइम। बिल्कुल, ना सिर्फ वो बल्कि अभी हमने जिस तरह स्टैट भी देखा, अगर हम एक मरतबा दोबारा देख सकें अपनी स्क्रीन्स पर, लखनऊ का वेन्यू बॉलर्स को इन जनरल हेल्प तो करता है, बट यहाँ पर 39 विकेट्स लिए पेस बॉलर्स ने। एंड इनकरेजिंग साइन वसीम भाई फॉर अफगानिस्तान, फजल अल फारूकी ने पिछले मैच में 4 विकेट लिए, तो उनकी पेस बॉलिंग स्टॉक्स भी अच्छी हैं। या अच्छे हैं। नवीन इज़ देयर एज वेल, बट नाउ द बिग क्वेश्चन इज, आई अंडरस्टैंड कि आपने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो हमने स्टैट देखा कि फास्ट बॉलर्स ने अभी तक जो मैचेस हुए इतनी विकेटें ली हैं कंपेयर टू आई सपोज 39 विकेटें, एवरेज इज़ अबाउट 26 पर विकेट। कोलकाता इससे बेहतर एवरेज है, 19 फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं। बट जो नीदरलैंड की टीम है, नीदरलैंड की, ये किसको अच्छा खेलती है? मीडियम पेसर्स को, फास्ट बॉलर्स को। ये किससे घबराते हैं? मिस्ट्री स्पिनर से। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि ये अगर नूर को खिलाना, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया फारूकी को ड्रॉप करके, और फारूकी ने पिछले मैच में 3 विकेटें ली हैं, सो अब ये ड्रॉप करेंगे नहीं फास्ट बॉलर को, नूर को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। आई वुड प्ले नूर, मे बी मिसबा मेरे से डिफर करें या शुएब या मोइन, बट इन माई ओपिनियन डजंट मैटर, अनलेस बेहतर तक ग्रास है, मैं नूर को खिलाऊंगा। ये आपकी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे फजल फारूकी को खिलाना चाहिए, वो इसलिए खिलाना चाहिए क्योंकि वो भी अटैकिंग बॉलर है, वो खबाचू भी है जी, और दोनों साइड पे वो स्विंग करते हैं बॉल को। और जब इनके स्पिनर्स की बात आए तो ये अटैकिंग बॉलर, तो इनको अटैकिंग ही पेसर भी चाहिए। नवीनुल हक, आई एम नॉट टेकिंग अवे क्रेडिट फ्रॉम हिम, ही इज़ बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फॉर अफगानिस्तान टीम, बट वो ही इज़ मोर ऑफ अ वेरिएशन बॉलर। जहाँ पे आप ये कर रहे हैं कि 300 के ऊपर मैच गया हुआ है, दूसरी टीम को 8 ओवर चाहिए, यू ब्रिंग हिम, तो फिर वो आपको कोई ऐसी जो है स्ट्राइक लेके दे सकते हैं। बट अगर आप 250 वाला मैच खेल रहे हैं तो फिर वही चाहिए, जैसे इनके पास स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के पास, इसी तरह के पेसर्स चाहिए जो आपको विकेट लेके दें, ताकि वो जो आप जिस टारगेट पे आप मैच खेलना चाह रहे हो उस पे आए वो। अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखें, नेदरलैंड्स के टॉप 3 ने कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं किए और वो स्ट्रगल भी करते हैं लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट, तो आपकी वाली बात पे ही कि फजल अल फारूकी ओवर नवीनुल हक माइट मेक मोर सेंस। वुड यू मेक द सेम चेंज, ब्रिंग इन नूर अहमद इनटू द प्लेइंग 11? मुझे वाकई बिल्कुल, मैं वसीम भाई को सेकंड करूंगा, बिकॉज मिस्ट्री स्पिनर है और नीदरलैंड्स की टीम स्ट्रगल करती है स्पिनर्स पे, इतने अच्छे नहीं हैं वो यकीनन। तो एक चांस बन सकता है कि यहाँ पे अगर नवीन को ड्रॉप करके नूर को लेके आया जाए, तो एक विकेट टेकिंग बॉलर, स्ट्राइक बॉलर है, विकेट लेंगे तो नेचुरली प्रेशर आप और क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें इन बैटिंग, तो आई थिंक हम स्टैट्स में देखते हैं कि जहाँ पे अफ़गानिस्तान की जो बैटिंग है, वो जो टॉप ऑर्डर्स हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा मीडियम पेसर्स के खिलाफ, तो एज सच मिकरन के अलावा कोई भी ऐसा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है नीदरलैंड्स की टीम में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे
नो डाउट कि अफ़गानिस्तान की टीम तो अच्छी है, लेकिन ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है नेदरलैंड्स, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो मिला हुआ है, इन्होंने भी 2 अच्छी बड़ी टीमों को मारा हुआ, जिस तरह साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेले थे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तो आई थिंक जिस तरह मिडल ऑर्डर खेल रहा है, कुछ लगता है कि वो रेजिस्टेंस तो शो करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ बस डिलार्डे भी फॉर्म में, और वो जिस तरह मिडल में आके बॉलिंग करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, तो आज थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है मुझे अफगानिस्तान की टीम यहाँ पे। Right then, we'll talk about the batting lineups of both Afghanistan and the Netherlands on the other side of this break. आप देखते रहिए A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Welcome back. आप देख रहे हैं The Pavilion and we're building up to match number 34 of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. Netherlands टेकिंग ऑन अफगानिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था इस सेगमेंट में हम बात करेंगे दोनों साइड्स की बैटिंग पर। अफगानिस्तान से शुरू करते हैं। मोइन भाई, आई वांट टू ब्रिंग दिस टू यू। अफगानिस्तान की ओपनिंग बैटिंग हैज़ डन फेयरली वेल इन दिस टूर्नामेंट। जी बिल्कुल, गुरबाज ने जिस तरह स्टार्टिंग लिए विद इब्राहिम, दे एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप फॉर देम। अनफॉर्चुनेटली मिडल ऑफ द टूर्नामेंट स्ट्रगल करती रही इनकी मिडल, बट ये एक ओपनिंग स्टैंड था जिसने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया मोस्टली मैचेस के अंदर। आई थिंक इसकी मेन वजह मुझे यही लगती है कि दोनों में से एक तो बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच के प्लेयर हैं गुरबाज, बहुत ही उससे फ़र्क पड़ता है जब आप किसी भी ओपोनेंट बॉलर को अटैक करते हो, लाइन वो चेंज करता है, उसका इफेक्ट दूसरे बैट्समैन को भी होता है। और इब्राहिम ज़ादा जो है वो बहुत ही अच्छे कंपोज बैट्समैन है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, एग्रेसिव एट टाइम्स हो जाते हैं थोड़ा सा सेट होने के बाद, लेकिन मोस्टली जो उनकी शॉट्स हैं वो लाइक बाबर, यानी क्रिकेटिंग ऑल अलोंग द ग्राउंड, वो हार्ड हिटिंग, हवा में नहीं डिस्प्ले करते शॉट्स का। आई थिंक इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है। और उनके अगेंस्ट लाइक जितनी भी टीमें खेली हैं, वो जो एक प्रेशर है ना गुरबाज का, वो तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बॉलर के जहनों में होता है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि एक इम्पैक्ट होता है क्रिएट, जिसकी वजह से आई थिंक इनको एक बड़ा अच्छा स्टार्ट भी मिला है जो थ्रू आउट इनकी ओपनिंग है। शुएब, नेदरलैंड्स की पावर प्ले में बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, तो आज काफ़ी क्रिटिकल रोल होगा गुरबाज का और इब्राहिम ज़ादरान का टू सी ऑफ दैट फर्स्ट 10 ओवर फेज। नहीं, गेम नहीं चेंज करना चाहिए। जो इब्राहिम ज़ादरान है वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं जिसको बोला जाता है लॉन्ग द ग्राउंड, और जो गुरबाज हैं वो ज़रा अटैकिंग ऑप्शन उनके पास। और देखें इनके नो डाउट इन द फर्स्ट 10 ओवर्स जो पावर प्ले है नीदरलैंड्स का, वो बहुत अच्छे से उसकी यूटिलाइजेशन करते हैं, लेकिन अब जो है उनकी लाइन और लेंथ को हिलाना जो है वो गुरबाज का काम है, क्योंकि वो हिलेगी तो वो फिर अलाउ करेंगे आपको रन्स बनाने। लेकिन अगर गुरबाज जल्दी आउट होते हैं तो फिर थोड़ा सा टफ ज़रूर होगा ये जो अफगानिस्तान के बैटर्स हैं कि किस तरह डील करना है उनके बॉलर्स को, क्योंकि काउंटर अटैक करना पड़ेगा और उसके लिए गुरबाज इज़ द बेस्ट ऑप्शन अफगानिस्तान हैज़। रहमानुल्लाह गुरबाज के ओपनिंग पार्टनर इब्राहिम ज़ादरान ने क्या बातें की, आइए देखते हैं। राइट देन, दैट वाज इब्राहिम ज़ादरान। अफगानिस्तान की ओपनिंग ने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, बट जैसे हर्षा भोगले ने वहाँ इंटरव्यू में कहा, उनके मिडिल ऑर्डर ने भी रन्स करना शुरू कर दिए हैं। एंड अफगानिस्तान आर कमिंग एट द बैक ऑफ 2 क्लिनिकल विन्स अगेंस्ट पाकिस्तान एंड श्रीलंका। रहमत शाह नंबर 3 पर आते हैं मिसबा, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला, 50 भी किए 2 मरतबा। उनकी बैटिंग को कैसे देखते हैं आप अफगानिस्तान के लिए? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टेक्निकली बहुत जो नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि आप समटाइम्स आते हैं अर्ली विकेट गिरती है तो बहुत अच्छा प्रेशर को हैंडल करते हैं, टेक्निक अच्छी है, डिफेंसिव टेक्निक अच्छी है, और कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड करें। अगर आप उनको देख रहे हैं जो वो शॉट्स खेलते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त होता है और टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है। सो अगर आपका एक बैट्समैन टॉप पे एग्रेसिव है और नंबर 3 वाला बैट्समैन इस तरीके से आके पार्टनरशिप लगा सकता है और कॉम्पैक्ट भी है टेक्निकली, तो फिर नीचे वाली बैटिंग को बहुत ज़बरदस्त एक बेस आप देते हैं। यही मेरे ख्याल में वजह है इनकी। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, 500 हैं इनके, 25-50 हैं, 36 की एवरेज है। दैट मीन्स के कंसिस्टेंट भी हैं और अच्छी खासी परफॉर्मेंस की एक्सपीरियंस भी है, और एज ग्रुप क्रिकेट से ऊपर आए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप उन प्लेयर्स के साथ निचले लेवल पर खेले हों तो इस लेवल पर आकर खेलना शायद थोड़ा रिलेटिवली आसान हो जाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो सारी चेंज आई है अफगानिस्तान की पूरी टीम में, हम देख रहे हैं कि टेक्निकली बेहतर प्लेयर आए हैं। ऊपर के दोनों प्लेयर्स को भी देखें, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, ये हैं, फिर हशमतुल्लाह शाहिदी हैं, अजमत, जितने भी आ रहे हैं वो प्रॉपर क्रिकेट, इसीलिए कंसिस्टेंट
रन्स कंसिस्टेंटली अब ये करना शुरू हुए और अब टीमों को उनके जहन में है कि इनकी बैटिंग इस काबिल है कि ये 270-280 तक भी चेस कर सकते हैं। शोएब, एक और बैटिंग का हिस्सा इनकी टीम के हैं अजमतुल्ला उमरज़ई। उन्होंने PSL भी खेली है और वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। उन्होंने इस दफ़ा मिडिल ऑर्डर में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है। लास्ट टाइम वी प्लेड टुगेदर इन बांग्लादेश प्रीमियर लीग और उसमें ये था कि बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे थे उस टीम में एंड ही यूज्ड टू बैट अराउंड 6 और 7 जो है, और स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी करते हैं व्हेन इट कम्स डाउन टू हिटिंग बाउंड्रीज। और इस वर्ल्ड कप में उनकी जो एवरेज है ये देखें, लास्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स खेले, जिस तरफ का बॉल था उसी तरफ खेला। और इनके एक बहुत अच्छी चीज़ है, ही डजंट पैनिक नहीं आपको करना, स्पेशली आफ्टर प्लेइंग डॉट बॉल्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो फिर जब इनको बाउंड्री बॉल्स मिलते हैं तो ये बाउंड्रीज मार लेते हैं। और इस वर्ल्ड कप में सो फार हिज एवरेजिंग 50 प्लस, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। स्ट्राइक रेट भी देखें, क्योंकि बाउंड्रीज के साथ खेलते हैं तो 97.59 का स्ट्राइक रेट है, 250s हैं। और वही जो जिसमें वो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे थे, इनके आने से जो है वो काफ़ी जो है उनको चीज़ मिली है। अगर ऊपर से जल्दी आउट भी हो जाते हैं, दे स्टिल इन द गेम। और इनके साथ जो है वो अली खेल जो है विकेट कीपर बैटर, उन्होंने भी कंसिस्टेंट रन्स बनाए हैं। फिर उनके कैप्टन आ गए हैं। नबी इज़ द ओनली थोड़ा सा वीक लिंक इन बैटिंग। अगर वो भी परफॉर्म करेंगे तो आई गेस ये जो 250 वाला मैच खेलते हैं, फिर ये 290 वाला 300 वाला मैच भी खेल सकते हैं किसी भी टीम के साथ। शोएब ने जिक्र किया हशमतुल्ला शाहिदी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्लिनिकल विंस जो मिले अफगानिस्तान को, उसमें भी ही प्लेड अ वेरी लीडिंग रोल। उनका रोल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीइंग अ कैप्टन, एक नेशनली जिस वक्त आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, हाईएस्ट रन गेटर अभी तक सो फार अफगानिस्तान के, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है आपको। जब भी आप डिसीजन ले रहे होते हैं अपनी टीम के लिए, आपको हेजिटेंट नहीं होते आप और बहुत ही बोल्डली डिसीजन लेते हैं। आई थिंक जिस तरह की इन्होंने बैटिंग डिस्प्ले किया एंड मिडिल ऑर्डर में आके एज अ लेफ्ट हैंडर, यू नो, ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ओपोनेंट बॉलर्स। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन चल रहा था, उसमें कमांड से क्रिकेट खेली अभी तक जितनी भी क्रिकेट खेली, अननेसेसरी चांस कहीं नहीं लिया। ऑल्दो के स्कोर इनको चेजिंग में थोड़ा सा कम ज़रूर मिला, लेकिन सेंसिबल क्रिकेट खेली है। यही आपकी मैच्योरिटी शो करती है किसी भी मिडल ऑर्डर बैट्समैन की, जहाँ पे टीम को रिक्वायरमेंट होती है एंड स्पेशली फ्रॉम अ कैप्टन। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक ये इज़ परफॉर्मिंग वेल नज़र आ रहा है। अभी हमने जो इंटरव्यू देखा था उसमें भी यहाँ मेंशन किया कि इनके कैंप का एटमॉस्फेयर भी इसी वजह से अच्छा होता है। जब आपका टीम का कैप्टन परफॉर्म कर रहा होता है तो पूरी टीम खुश होती है, और यही वो बॉडी लैंग्वेज हमें ग्राउंड में भी नज़र आता है जिससे ये मैच जीत रहे हैं और कंसिस्टेंटली अटैक करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग हैविंग अ कैप्टन एंड परफॉर्मिंग एट द सेम टाइम। तो ये पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है इनकी टीम के अंदर भी। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ऑन द अदर साइड वी हैव द पिच रिपोर्ट फॉर यू एंड वील डिस्कस दैट विद आवर पैनल। कीप वाचिंग ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARYZ ऐप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द पवेलियन ऑन A Sports 10 Sports and the ARYZ ऐप। मैच नंबर 34, इट इज द नेदरलैंड्स वर्सेस अफगानिस्तान। और अब टाइम हुआ है पिच रिपोर्ट का, ब्रॉट टू यू बाय Colgate GRF. Right, and that was the pitch report. Good job to Pommy Mbangwa for getting the name right, first of all. But again, a little bit of this and a little bit of that. Yeah, bits and bobs. Neither here, neither there. Adda titter, adda bitter. But I suppose Pommy ने ये कहा है कि end में it might break up. I don't know why he said it. But again, जो पिच की प्रेपरेशन दिखाई है यहाँ से तो लग रही है थोड़ी ड्राई मुझे। अगेन उन्होंने बताया है कि 2 soils, red soil and a black soil, too much detail into it. But sure. बट ये जो ग्रास जो सलाद डाली थी वो नहीं है, वो हटा ली है, वो झाड़ू देके। बट बाकी दिस इज़ अ ग्रास ऑन इट, सो इट माइट हेल्प यू नो फास्ट बॉलर्स, मीडियम पेसर्स अर्ली ऑन इन द डे इनिंग्स आई थिंक। बट ओवर एंड ऑल दिस इज़ वन ऑफ द पिचेस जो यहाँ से मुझे लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग बट वी आर माइल्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द वेन्यू, कि इट डजंट लुक लाइक अ बैटिंग डेक टू मी, लाइक यू नो ट्रू बैटिंग डेक। एम आई राइट? वुड यू एग्री मिस्टर? बिल्कुल, जैसे उन्होंने बात भी की है, ख़ुद भी वो श्योर नहीं थे कि सीमर्स को भी हेल्प करेगी, बाद में थोड़ी सी ब्रेक होने के भी चांसेस हैं, और एंड पे फिर ये भी कह दिया कि ड्यू पड़ेगी तो शायद बैटिंग आसान हो जाए। कि ब्रेक होएगा या नहीं होएगा
या बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। ये पिच पे खड़े होकर स्टूडियो की बात है। ये डेफिनेशन होती है सपोर्टिंग पिच की, सबको सपोर्ट करें। सबको सपोर्ट करेंगे। वेन्यू स्टैट्स पे नजर डालते हैं मिसबा, यू कैन टॉक अस थ्रू दैट। लखनऊ के अंदर अभी तक एवरेज स्कोर इज 243। दिस इज गोइंग टू बी द 9th ODI बीइंग प्लेड एट दिस वेन्यू। एवरेज स्कोर लगभग इसी के आसपास ही आप समझते हैं अभी भी रहेगा या पिच बहुत डिफरेंट है? मेरे ख्याल में जो भी टीम इतना स्कोर करेगी दे आर इन द गेम। और बड़ा एक मुश्किल काम है इतना स्कोर चेज़ करना यहाँ पे, जिस किस्म की पिच है। नया बॉल सेकंड टाइम वो स्विंग भी होता है, इवन ऑफ द पिच भी, क्योंकि वो सरफेस उतनी कॉम्पैक्ट नहीं रहती, सीम भी होता है, तो मुश्किल होता है। एंड देन स्पिनर्स भी आ जाते हैं गेम में, तो 250 रन्स यहाँ पे अच्छे रन्स हैं। 250 से अगर ऊपर हो जाता है तो नॉर्मली इट्स अ विनिंग स्कोर है। जो भी टीम जीते टॉस उसको बैटिंग करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान जो है, जो उनका पेस अटैक है, मोस्टली जो नीदरलैंड्स के हैं वो मीडियम पेसर्स हैं और अंडर लाइट्स उनको हेल्प मिलेगी। और उनमें भी एक दो हैं टॉल, जैसे मैक्रीन है, इज़ अ टॉल बॉलर, तो उसको वो ऑफ द पिच जो है लेटरल मूवमेंट मिल सकती है, बाउंस मिल सकता टीम है, जो टॉस जीतेगी उसे वो क्या बैटिंग करे? करनी चाहिए। बैट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हाँ। शुएब। मोइन भाई आपसे भी पूछना चाहूंगा, योर वर्डिक्ट, इफ यू विन द टॉस यू बैट फर्स्ट और डेफिनेटली मेरे ख्याल जिस तरह पिच नज़र आ रही है बैटिंग बिल्कुल करनी चाहिए, बट ये भी देखना होगा कि अफगानिस्तान के कप्तान के जहन में, उनकी टीम का जो थिंक टैंक है उनके जहन में क्या चल। दोनों मैचेस पिछले उन्होंने चेस करते हुए जीते हैं, तो यहाँ पे एक उनके जहन में ये भी होगा कि अगेन शायद वो ट्राई करें चेस करके मैच जीतने की, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अफगानिस्तान चेस कर पाएगी। एनीथिंग ओवर 250 बहुत मुश्किल होगा चेस करने के लिए, स्पेशली अफगानिस्तान के लिए। चले, हमें अभी थोड़ी ही देर में ये मालूम हो जाएगा कि which team will be batting first. We'll take a short break. After the break, we'll bring the toss to you live from Lucknow. आप देखते रहिए A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. See you all on the other side of this break. Welcome back. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Match number 34 of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. I want to bring this to you, Shoaib. हम अफगानिस्तान की बैटिंग की तो बात कर चुके हैं, नेदरलैंड्स के टॉप 3 बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? देखें, उसके पीछे यही वजह है कि जिस तरह का वो खेलते हैं, स्पेशली जो उनके ओपनर्स हैं मैक्सो दाऊद और विक्रमजीत सिंह, ये जो है ये उनकी 10 की एवरेज है जो ओपनर है। और देखें विक्रमजीत सिंह की 16 की, और जो कॉलिन एक्करमैन है उनकी 25 की एवरेज है। इसी वजह से वो हाई स्कोरिंग वाला मैच जो है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके मिडिल ऑर्डर में आके जैसे उनके कैप्टन एडवर्ड्स वो रन्स बना लेते हैं, या बस डिलाइडे ये रन्स बना लेते हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से द डे इवन वन बैटर स्कोर्स रन्स, सो वो किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। तो यही एक वजह है कि जिसकी वजह से वो जो मैच है वो कभी 200, 240 इफ़ यू प्लेइंग ऑन अ गुड डेक, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उनके पास ऐसा अटैक है कि जिस दिन इन तीन में से एक भी बड़े रन्स बनाएगा तो वो जो है किसी भी टीम को Shoaib, I'll cut you short there. We have to go to Lucknow for the flip, brought to you by Samsung. Right, no confusions there. Both camps wanted to bat first और नेदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। बोथ टीम्स विद 1 चेंज ईच। वसीम भाई, ठीक डिसीजन नेदरलैंड्स का टू बैट फर्स्ट ऑन दिस पिच? आई थिंक सो, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, गुड टॉस टू विन। और अफगानिस्तान के कप्तान ने ये भी किया कि यहाँ टर्न होगा, हैंस दे प्लेइंग एक्स्ट्रा स्पिनर एंड दैट्स अ वेरी गुड सिलेक्शन अगेंस्ट नीदरलैंड, बिकॉज जो बॉल ने टर्न होना है, थोड़ा अगर होगा भी या ज़्यादा भी होगा तो वो पहली बॉलिंग में होगा, सेकंड बॉलिंग में कम होगा, बिकॉज थोड़ी सी भी अगर ड्यू आ गई तो ग्रिप इतना नहीं होता। सो आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, बट गुड टॉस टू विन फॉर नीदरलैंड। जैसे आपने पहले कहा, नेदरलैंड्स की बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल भी करती Yes. है, तो इट इज एसेंशियली अफगानिस्तान स्पिन अटैक versus the Netherlands their batting. batting. And of course their opening you guys just spoke about in length, you and Shoaib, and especially that guy Daoud, वो नहीं चलिया। वो खेड आज फिर भी रहा है। दूसरा वाला नहीं खेल रहा विक्रमजीत की जगह वो लेकर आए वेस्ट बरेसी को। उसकी एवरेज थोड़ी ज़्यादा थी उससे। मिसबा, आप बताइए, नेदरलैंड्स का फैसला आपके लिए भी नो ब्रेनर था फॉर देम टू बैट फर्स्ट? बिल्कुल, यहाँ पे जो प्रीवियसली गेम्स इस तरीके से चल रहे हैं, स्पेशली इस वर्ल्ड कप में, उसमें तो यही है, अगर आप रन्स लगा देते हैं, इवन लास्ट गेम इंडिया जब खेली है 230 रन्स भी मुश्किल हो गए थे, तो होपफुली दे विल जस्ट लुकिंग के हम कुछ 230-40 कर लें और बाद में अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो।
प्लेइंग 11 पर नज़र दौड़ाते हैं। पहले नेदरलैंड्स की प्लेइंग 11 हमारे सामने। शोएब, इफ़ यू कैन वॉक अस थ्रू द नेदरलैंड्स प्लेइंग 11। ये जो उनका आज चेंज हुई है, विक्रमजीत सिंह की जगह पे आए हैं बरासी, फिर वही मैक्सुदाउद एक्करमैन, और ये जो साइब्रेंट हैं इन्होंने मिडल ऑर्डर में रन्स भी बनाए हैं। एडवर्ड्स, बसडिलाइडे, जुल्फ़िकार और वैन बीक, वेंडर मर्वी और दत्त, ये बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर हैं। एंड देन मिक्रीन, बहुत अच्छे टॉल पेस बॉलर हैं। एक चेंज है उनकी टीम में, और ये है अफगानिस्तान की टीम जिसमें एक चेंज है, जो नूर अहमद आए हैं नबीनुल हक की जगह। इन्होंने चेज़ भी अच्छा किया, और ओवरऑल इनके जो पहले 4-5 बैटर्स हैं दे आर इन गुड फॉर्म। स्पिनिंग तो ज़ाहिर बात है उनके डिपार्टमेंट में दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और आज लेकिन एक चीज़ होगी, इन्होंने चेज़ ज़रूर किया हुआ है, लेकिन आज डिफरेंट वेन्यू पे जो है वो होने जा रहा है। मेक श्योर करें कि नथिंग बियॉन्ड 220, 225, 230, इससे ज़्यादा रन्स नहीं बनने चाहिए। दो बड़ी टीमों के खिलाफ चेज़ किया और बड़े क्लिनिकल अंदाज में चेज़ किया, तो वो कॉन्फिडेंस के लिए कितना अच्छा होगा अफगानिस्तान के लिए गोइंग इन टू चेज़ टुडे? आई थिंक यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कम से कम। टोटल में जिस तरह मिसबाह शोएब ने दोनों ने बात की है, एनीथिंग अबव 250 would be difficult to chase this time. And you would expect the ball to move around under the lights? Well, अभी तक तो पूरे टूर्नामेंट में देखा हर वेन्यू के ऊपर ही मूव तो कर रहा है, गेंद हेल्प मिलती है, और जिस तरह फिर लेटर ऑन हम ड्यू को एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्यू आएगी, उसके लिए आपको फिर इनिशियली स्टे करना पड़ता है क्रीज के ऊपर, विद सम काइंड ऑफ रन रेट को भी मेंटेन करना होता है आपने। तो ऐसा ना हो अफगानिस्तान को वो रन रेट को मेंटेन करने के चक्रों में जो है वो विकेट गंवा बैठे। और हमने प्रीवियसली देखा 2 मैचेस में नो डाउट अच्छा ज़रूर खेले वो, लेकिन प्रेशर एनीथिंग अबव 250 उनके ऊपर प्रेशर आएगा। दोनों मैचेस हमने देखे पिछले मैचेस के अंदर इतना बड़ा टारगेट नहीं था, इस वजह से बड़ा उन्होंने कंसोलिडेट की इनिंग बनाई, डेवलप की और इजीली चेज़ किया एट द एंड। तो थोड़ा सा ज़रूर मुश्किल होता है, अगर विकेट गिरी तो मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान। The news from Lucknow then is that the Netherlands will be batting first against Afghanistan. We're building towards this match starting shortly. We'll take a quick break here and see you all on the other side of this break. Welcome back. आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. अब से कुछ देर बाद हम बराह रास्त लेकर आएंगे Netherlands versus Afghanistan from Lucknow starting at 1:30 PM. मेरे साथ पाकिस्तान के 4 फॉर्मर कैप्टन्स और लेजेंड्स मौजूद हैं, और हम इनसे लेंगे अब एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस brought to you by Express Power. मोइन भाई, आपने अपनी सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, बहुत मुश्किल से हमें बताइए आपकी एक्सपर्ट प्रेडिक्शन आज की। ये आज की नहीं, अगले 5 साल की। नहीं, 5 साल की तो नहीं, ये पीछे के वो जो 800 साल पहले का बताया, तो आज पेज निकाल के लाया था मैं वो वाला। माय टीम इज फॉर टुडेज नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स फॉर मोइन भाई। आप एक दफ़ा दोबारा अपने पेपर्स चेक कर लीजिए। मैं चेक कर लिए, मैंने चेक कर लिया। एक ही चांस है इनके पास 250 प्लस करें इजीली मैच जीत। तो आपने इन पे चट लगा दी है? बिल्कुल चट लगा दी है मैंने। वसीम भाई एने दे धोबी दे फटे दे जेड़े ने कपड़े नहीं होंदे कपड़े पेपर में। शोएब के पास आएंगे फिर हिज एक्सपर्ट प्रेडिक्शन। शोएब नहीं, पहले वो देखिए क्या कह रहे हैं। यार प्रोग्राम क्रिकेट की प्रेडिक्शन करें आप, ये क्यों धोबियों की प्रेडिक्शन? अफगानिस्तान पर शोएब मलिक। मिसबा, आपकी टीम? अफगानिस्तान। Wasim bhai. I definitely go for Afghanistan here. So it's 3-1 and those were your expert predictions. और अब टाइम हुआ है प्लेयर टू वॉच आउट फॉर का। दिस इज ब्रॉट टू यू बाय यूफोन। एक मर्तबा फिर अगर आप अपने कागजात में देखें और हमें बताएं कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर आज जो ये सितारे थोड़े से गर्दिश कर रहे हैं एडवर्ड्स के आज, लेकिन बस डिलाडे के बेहतर है। बस डिलाडे इज योर प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। शोएब? आई एम कंफ्यूज बिटवीन मुजीबुर रहमान एंड राशिद खान। मुझे बता मैंने भी यही लिखे हुए दोनों में से कोई। राशिद खान। राशिद खान फॉर शोएब मलिक। मिसबा, आपका प्लेयर टू वॉच आउट? मैं फिर मुजीब ले रहा। वसीम भाई? आई एम गोइंग फॉर राशिद। किसी ने पिक किया? राशिद पिक हो गया। ओके, आपने तो नूर को वैसे पिक किया था ना आज खिलाना जरूर। हां, तो नूर अहमद इज वसीम अकरम्स प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। दोस वर योर प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, ब्रॉट टू यू बाय यूफोन। राइट, सो न्यूज़ इज लखनऊ में टॉस जीता नेदरलैंड्स ने। दे विल बी बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान खिला रहे हैं आज एक 4 स्पिन अटैक। नूर अहमद, मोहम्मद नबी, राशिद खान
और मुजीबुर रहमान। ये मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान ऑफ कोर्स स्टिल इन विद अ चांस टू मेक इट टू द टॉप 4 एंड सो इज द नेदरलैंड्स, पर उनके लिए शायद रास्ता थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। हम चलेंगे अब लखनऊ फॉर द मैच। आप हमारे साथ शामिल रहिएगा इन आवर डिस्कशन इन द पोस्ट मैच शो। We'll be back with these 4 legends of Pakistan cricket and we hope that we get a very good game today. Catch you all on the other side.